I am Bhimsing Bohra from Krishna Engineering College, Ghaziabad, and today I am going to discuss about the topic of how to determine candidate key and how to determine super key. So as you can see on the screen, I have shared the questions that we are going to cover or the topics that we are going to cover, that is how to determine candidate key and super key from a given set of functional dependencies as well as the relation. And second thing that we are going to cover in this lecture is canonical cover or minimal cover. Okay. So without wasting any further time, we will immediately jump into or dive into a typical problem. Okay, like what kind of questions can be asked in the examination as well as what kind of question can be asked in the competitive examination. So based on these two topics, in our last lecture we discussed about how to find out closure of an attribute set. Before that we have discussed about finding out closure of functional dependency set. Okay, so we have discussed those two topics and this is our next one which we are going to cover in this particular lecture. Alright, so let me just start with a particular set of problems. First of all, what is candidate key and what is a super key? Let's say I have an attribute A. Let's say I have an attribute A, okay? And if this A is able to define in my relation A, B, C, D, and E. Let's say I have these attributes in my relation. And if A is able to define A, B, C, D, and E, all of these attributes, okay? So I can say that this is eligible for making it a key value. A is eligible to be set as a key attribute. जैसे कि अगर मैं आपको कहता हूँ मेरे पास एक टेबल है, okay? Let's say I have a database table called student. और इस टेबल के अंदर मेरे पास जो एट्रीब्यूट है SID, स्टूडेंट का नेम एंड स्टूडेंट एज, 3 एट्रीब्यूट है। और मैं अगर ऐसा कहता हूँ कि SID के हेल्प से मैं स्टूडेंट की ID को भी आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, SID के हेल्प से मैं उसके नेम को भी आइडेंटिफाई कर सकता हूँ और ID के बेसिस पे मैं उसकी एज को भी आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। मतलब ये एट्रीब्यूट ऐसा है कि जिसकी हेल्प से मैं उस टेबल के सारे एट्रीब्यूट्स को डिस्कवर कर सकता हूँ, आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। तो ऐसी सिचुएशन में हम इस एट्रीब्यूट को क्या कर सकते हैं? इस एट्रीब्यूट को मैं की डिक्लेयर कर सकता हूँ। मतलब कि इसे मैं फ्यूचर में हमारे डेटाबेस इस टेबल का स्टूडेंट टेबल का प्राइमरी की बना सकता हूँ या फिर मैं उसे एज अ कैंडिडेट की भी डिक्लेयर कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमें की क्या है वो तो हमें ऑलरेडी पता है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, लाइक व्हाट इज की, व्हाट इज प्राइमरी की, व्हाट इज फॉरेन की, सुपर की, कैंडिडेट की, अल्टरनेट की, ये सारे टॉपिक्स हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, अगर मेरे पास एक गिवन सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज गिवन है और बेस्ड ऑन दैट मुझे ये पता लगाना है कि इस टेबल में कौन सी मेरी कैंडिडेट की या फिर कौन सी मेरी सुपर की बनने के लायक है। ठीक है, तो वो पता करने के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब आप कहोगे कि ये टॉपिक हमारे नॉर्मलाइजेशन वाले यूनिट में क्यों आता है? क्योंकि जब भी हम डेटाबेस डिजाइन करते हैं तब ये इम्पोर्टेंट हो जाता है हमें चूज करना कि कौन सा एट्रीब्यूट या कौन से सेट ऑफ एट्रीब्यूट आपके कैंडिडेट की बनने के लायक है या फिर कैंडिडेट की है, और उसके बेसिस पे आप चूज कर सकते हो। क्योंकि आपका प्राइमरी की आपको जब चूज करना होगा तो आप क्या करोगे? कैंडिडेट की विच इज एबल टू आइडेंटिफाई ऑल द रिकॉर्ड्स इन योर डेटाबेस टेबल इज कॉल्ड प्राइमरी की। तो हमें कैंडिडेट की फाइंड करना बहुत जरूरी हो जाता है, तो वही चीज हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, लेट्स से let me put the question over here so that I will first of all solve that question and then we will see its solution. Okay, then we will see its solution. Let's say I have a relation A, B, C, D, E and F. A, B, C, D, E, F. ठीक है, मेरे पास ये रिलेशन है और मेरे पास यहाँ पे एट्रीब्यूट है A which is able to identify B, C, D, E and F. I have BC which is able to identify A, D, E and F. I have B which is able to identify F and I have D which is able to identify E. Okay,
Let's say this is the question. All right. Now, what I have to find, I want to find out what is going to be my key attribute. Okay, which is going to be my key attribute for this particular relation. Key attribute for this relation R. Okay, I want to find this out. So how am I going to find out? First of all, if you remember in our last lecture we discussed about closure, how to find out closure. ओके हमने ये डिस्कस किया था, तो सेम क्लोजर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम हर एक एट्रीब्यूट का पहले क्लोजर निकालेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास फंक्शनल डिपेंडेंसी जो लेफ्ट हैंड साइड के एट्रीब्यूट है वो कौन कौन से हैं? एक तो ए है, एक बी है, एक बी है और एक डी। तो इनके हम क्लोजर सेट निकालेंगे। ठीक है, तो ए का क्लोजर सेट अगर मैं निकालता हूँ तो ए किस किस को डिफाइन कर रहा है? हम यहाँ पे प्रीवियस एग्जांपल के जैसे जैसे क्लोजर सेट का मैंने आपको बताया था, तो एक एक स्टेप करने की जरूरत नहीं है। अब हम डायरेक्टली फंक्शनल डिपेंडेंसी के बेसिस पे निकालने की ट्राई करेंगे। तो ए सबसे पहले खुद को तो डिफाइन करेगा ही, ठीक है, और उसके राइट हैंड साइड पे जो जो एट्रीब्यूट्स होंगे उन सबको डिफाइन करेगा। तो बी, सी, डी, ई और एफ। तो ए ये एट्रीब्यूट इन सबको डिफाइन करेगा। ए कहीं और पे है, लेफ्ट हैंड साइड पे कहीं नहीं है। फिर बीसी की बात करते हैं, तो बीसी पहले बी और सी खुद को तो डिफाइन करेगा और राइट हैंड साइड में उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं ए, डी, ई और एफ, ठीक है, इनको डिफाइन करेगा बीसी कंबाइन होकर। और बी की अगर मैं बात करता हूं तो बी अकेला किसको डिफाइन करेगा? एक तो खुद को डिफाइन करेगा और एफ को डिफाइन करेगा। और बी एफ का कॉम्बिनेशन कहीं पे है? नहीं है। बी यहाँ पे अकेला नहीं है, देख सकते हैं आप कि बी और सी कंबाइन होकर डिफाइन कर रहे हैं, लेकिन सी हमारे यहाँ पे सेट का पार्ट नहीं है, तो फिर हम ये ए डी ई एफ यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर सकते। तो हमारा बी का क्लोजर क्या निकलेगा? बी और एफ। अब डी का क्लोजर सेट मुझे अगर निकालना है तो डी पहले खुद को डिफाइन करेगा, डी ई को भी डिफाइन करेगा। डी से कहीं और एट्रीब्यूट क्लोजर है लेफ्ट हैंड साइड पे? कोई भी फंक्शन डिपेंडेंसी है? नहीं है। तो ये एट्रीब्यूट। अब हमने चार एट्रीब्यूट क्लोजर निकाले, ए प्लस बी, सी प्लस, डी प्लस और डी प्लस। तो हमें ये देखना है कि कौन से ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जो सारे ही एट्रीब्यूट्स को डिफाइन कर रहे हैं। तो एक तो आपका ए ऐसा है, डिटरमाइन ऑल एट्रीब्यूट्स, ठीक है। आप देख सकते हैं ए प्लस का आपने ये जो क्लोजर निकाला, ये सारे एट्रीब्यूट्स को डिफाइन कर रहा है। ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ सबको डिटरमाइन कर रहा है। और बी सी का जो आपने क्लोजर निकाला उसमें भी सारे एट्रीब्यूट्स हैं, उसने भी सारे एट्रीब्यूट्स निकाले। तो आपके जो की एलिमेंट है वो कौन कौन से बन सकते हैं? ओके, सो हमने जैसे डिस्कस किया कि ए और बी सी जो है ये आपके सारे एट्रीब्यूट्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो आप अपने की एट्रीब्यूट किसको कह सकते हो? की में आप कह सकते हो या तो आप ए को बना सकते हो या तो बी सी को। तो यहाँ पे आपका जो की एट्रीब्यूट ऑफ द रिलेशन कैन बी ईदर ए और बी सी, ठीक है। इसमें से अब जो भी आप चूज करोगे इट कैन बी अ प्राइमरी की ऑफ योर डेटाबेस टेबल। तो ये दोनों जो की एट्रीब्यूट्स आपने कहा कि ए और बी सी, ये दोनों आपके की एट्रीब्यूट्स हैं, तो इन्हें हम लोग क्या कहेंगे? कैंडिडेट की। इन्हें क्या कहेंगे हम लोग? कैंडिडेट की। तो आपके कैंडिडेट की कौन कौन से हैं? ए और बी सी, ये आपके बन जाएंगे कैंडिडेट की। और वहीं पे अगर मैं आपको कहता हूँ कि भाई मुझे सुपर की कौन कौन सी है ये बताइए, तो सुपर की आप वो सारे एट्रीब्यूट आप मेंशन करोगे जो एट्रीब्यूट आपके डेटाबेस के टेबल्स के रिकॉर्ड सॉरी एट्रीब्यूट्स को आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। तो सुपर की कौन कौन सी बन जाएंगी आपकी? ए आपके सारे रिकॉर्ड्स को आइडेंटिफाई कर सकता है, बी सी भी आपके सारे रिकॉर्ड्स को आइडेंटिफाई कर सकता है, और ए बी सी आप कंबाइन करके भी सारे रिकॉर्ड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ये आपके सुपर कीज होंगे, ये तीन, और आपके कैंडिडेट की ये दो, ठीक है। तो कई बार एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमेशा ऐसे पूछे जाते हैं, आपको कहा जाएगा find out what is which is going to be my candidate key, find out which is going to be my super key, ओके। तो वहां पर हमें इसी प्रकार से सॉल्व करना है। आपको रिलेशन गिवन है, आपको सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज गिवन है, उसी के बेसिस पे आपको पता लगाना है दैट विच इज गोइंग टू बी योर प्राइमरी की और विच इज गोइंग टू बी योर लेट्स से super key, okay. So let me show you one more example for this particular problem, how to find out the primary key, okay. और उसमें आपको पता लगाना है कि कौन कौन सी आपकी प्राइमरी की बनेगी। एक और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको और क्लियर आइडिया आ जाएगा, ठीक है।
let's say I have the relation like this. Okay, A, B, C, let's say it is D, E, H. All right, and functional dependency is like this. A is able to define BC and CD is able to define E, and we have E is able to define C, and AH is able to define E. Okay, so we have this set of functional dependencies. Now, what we are going to do, this is E, D. All right, I want to find out candidate key. What are my candidate keys? कि आपको पूछ लिया जाता है कैंडिडेट की बताइए या कैंडिडेट की और सुपर की बताइए, तो आपको ढूंढना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, क्लोजर सेट निकालोगे। ए प्लस का क्या होगा, ए खुद को डिफाइन करेगा। फिर ए किसको डिफाइन कर पा रहा है, बी और सी को, तो बी और सी भी इसके पार्ट बन जाएंगे। और फिर किसी को डिफाइन कर पा रहा है, ए किसी और को डिफाइन नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंप्लीट। आप कहोगे कि सर हमने सी डी को क्यों नहीं लिया, क्योंकि सी तो इसका पार्ट है सेट का, लेकिन बी सेट का पार्ट है नहीं, अभी तक आया नहीं है। तो सिर्फ सी अकेले ई को नहीं डिफाइन कर पा रहा, सी डी कंबाइन होकर ई को डिफाइन कर पा रहा है, तो हम इसे एट्रीब्यूट क्लोजर में कंसीडर नहीं करेंगे। सेकंड क्लोजर में इसका निकालूंगा सी डी प्लस। ठीक है, सी डी प्लस अगर मैं निकालता हूँ तो मेरे पास एक तो सी को खुद को सी को डिफाइन करेगा, डी को डिफाइन करेगा, और सी डी मिलकर किसको डिफाइन करेंगे, ई को, और ई इज एबल टू डिफाइन सी, और फिर उसके बाद कोई एट्रीब्यूट आपका डिफाइन होके नहीं आएगा। तो सी डी आपका, सी डी और ई तीन ही एट्रीब्यूट डिफाइन कर पाता है। वहीं पे मैं ई को, अगर ई का एट्रीब्यूट क्लोजर निकालता हूँ, तो ई का एट्रीब्यूट क्लोजर क्या है, एक तो ई खुद को डिफाइन कर पाएगा, और ई किसको डिफाइन कर पा रहा है, सी को, और सी अकेले कहीं किसी को डिफाइन कर पा रहा है नहीं, ई सी कहीं पे कंबाइन होकर डिफाइन कर पा रहे हैं नहीं, तो ये भी मेरा ई सी ही निकल पाएगा। अब ए एच का मैं एट्रीब्यूट क्लोजर निकालूंगा, ए एच प्लस, व्हाट इट विल रिजल्ट इन, ए एच प्लस मेरा जनरेट करेगा ए एच, और जिसको डिफाइन कर पा रहा है डी, ए एच और डी, और ए हमारा अकेला किसको डिफाइन कर पा रहा है, बी और सी को। ठीक है, और यहाँ पे सी और डी दोनों सेट के पार्ट हैं, तो सी डी किसको डिफाइन कर पा रहे हैं, ई को, और ई ऑलरेडी सी को डिफाइन कर पा रहे हैं। मतलब आपका ये जो लास्ट वाला जो था ए एच प्लस, ये एट्रीब्यूट का क्लोजर जो आपने निकाला, इट इज एबल टू डिफाइन ऑल द एट्रीब्यूट्स ऑफ योर रिलेशन। है कि नहीं, आप देख सकते हो ए बी सी एच डी ई, ए बी सी एच डी ई, यही से तीन यहाँ पर आपके एट्रीब्यूट हैं, सॉरी यही 6 एट्रीब्यूट जो है वो आपके ए एच प्लस पूरा, या फिर ए एच जो एट्रीब्यूट है फंक्शनल डिपेंडेंट है, उसकी बेसिस पे आप सारे डिफाइन कर सकते हो। तो ए एच आपकी क्या बन जाएगी, कैंडिडेट। ठीक है, और वही आपकी सुपर की भी है, वही आपका की एट्रीब्यूट भी है। तो यहाँ पर हम उस बेसिस पे हमें हमेशा जब भी कैंडिडेट की या सुपर की निकालना हो, तो हम एक ये मेथड से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा तरीका एक आता है, दूसरा मेथड में क्या है कि अगर मुझे सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज गिवन नहीं है, सॉरी मुझे रिलेशन गिवन नहीं है, मुझे ये पता करना है सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज गिवन है, तो वहां पर मैं कैसे कर सकता हूँ। तो इसका हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट केस था, ठीक है, केस 2, when relation is not provided but only set of functional dependencies are given, then how to determine candidate. All right, so we are going to see this one now. So in this question, like if I want to find out relation is not provided but we have been given set of functional dependencies, then how to determine candidate. So first what we have to do, we have to combine. Okay, first step is combine left hand side of functional dependencies
create a set. Second, eliminate elements, or you can say attributes elements or attributes which are determined by given functional dependency. ओके, तो दो स्टेप में हमें करना है ये प्रॉब्लम सॉल्व. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास गिवन है कि अगर मेरे पास सिर्फ फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है, मुझे रिलेशन गिवन नहीं है, और मुझे पता करना है कि इसमें सुपर की कौन सी बन सकती है या प्राइमरी की सुपर की कौन सी बन सकती है और कैंडिडेट की कौन सी बन सकती है. तो बहुत ईजी मेथड है इसको सॉल्व करने के लिए. जैसे एक नीचे प्रॉब्लम गिवन है और इसके सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है, अब हमें सिर्फ उसमें सुपर की और कैंडिडेट की पता करना है. तो हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहला जो स्टेप है, कंबाइन लेफ्ट हैंड साइड. जो भी हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसी है, वो सारी फंक्शनल डिपेंडेंसी के लेफ्ट हैंड साइड में जो एट्रीब्यूट्स हैं उन सबको कंबाइन कर दो, वो आपकी सुपर की बन जाएगी. ठीक है, तो पहला स्टेप जैसे ही आप कंप्लीट करोगे, ये पहला स्टेप आप जैसे ही कंप्लीट करोगे, इट विल जनरेट योर सुपर की. फिर उस सुपर की के ऊपर आप फंक्शनल डिपेंडेंसीज अप्लाई करोगे और एक एक एलिमेंट रिमूव करते जाओगे जो डिटरमाइन किए जाते हैं उस फंक्शनल डिपेंडेंसी से. ठीक है, तो वो रिमूव करते करते लास्ट में आपके पास छोटा सा सेट जो बच जाएगा वो आपका बन जाएगा कैंडिडेट की का. तो ये एग्जांपल हम लोग देखते हैं सबसे पहला. ठीक है, यहाँ पे मेरे पास सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है. ए डिटरमाइंस बी, बी सी डिटरमाइंस बी, बी सी डिटरमाइंस ई और ई एफ डिटरमाइंस सी. तो मैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड सबसे कंबाइन कर लेता हूँ. तो मेरे पास सेट क्या बनेगा? एक ए बी सी, और ये भी बी सी ही है, और ई एफ. ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड का मैंने पूरा कंबाइन किया, जो भी सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी से जो लेफ्ट हैंड साइड पे थे. ठीक है, ए बी सी और ए एफ, इन तीनों को कंबाइन करके मेरे पास जो सेट बन के आया, दिस इज माय सुपर की. वेरी सिंपल. ठीक है, सुपर की फाइंड करना बहुत ही इजी है. ऑलराइट, अब इसके बाद हमारा जो टास्क है, मेन कैंडिडेट की फाइंड करने का जो टास्क है वो स्टार्ट होता है. तो कैंडिडेट की फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले फंक्शनल डिपेंडेंसीज हम देखेंगे कि कितने कॉम्बिनेशन में ये फंक्शनल डिपेंडेंसी सेटिस्फाई कर रही है. मतलब कॉम्बिनेशन से लेस होते होते हम लोग फिर सिंगल फंक्शनल डिपेंडेंसी पे आएंगे. ठीक है, तो अब ए बी सी ई एफ में सबसे ज्यादा कॉम्बिनेशन वाली फंक्शनल डिपेंडेंसी ये है. तो ए ई और एफ ये तीनों मिलकर किसको डिटरमाइन कर रहे हैं? जी को. तो हम जी को एलिमिनेट करेंगे हमारे सेट में से, लेकिन जी तो इसमें ऑलरेडी है ही नहीं, तो हमें कुछ एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, तो हम ए ई एफ को ऐसे रहने देंगे. नेक्स्ट हमारा स्टार्ट होता है बी सी इज एबल टू डिटरमाइन ई. बी सी इज एबल टू डिटरमाइन ई. अब बी सी तो इसमें पार्ट है, लेकिन ई भी पार्ट है. यस, तो हम इसे रिमूव कर देंगे. तो आपकी ये सुपर की आपके रिड्यूस होके आ जाएगी ए बी सी और एफ, क्योंकि ई हमने रिमूव कर दी बिकॉज बी सी वॉज एबल टू डिटरमाइन ई. तो हमें कैंडिडेट की फाइंड करनी है, तो हमें रिड्यूस करना पड़ेगा उस एट्रीब्यूट को कि कितने कम से कम एट्रीब्यूट हम कंबाइन करके सारे रिकॉर्ड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ठीक है, तो बी सी हम ऑलरेडी डिटरमाइन, सॉरी ई हम डिटरमाइन कर सकते थे बी सी की हेल्प से, तो हमने ई को रिमूव कर दिया. अब हम नेक्स्ट चेक करेंगे बी सी डिटरमाइन डी. तो बी सी का कॉम्बिनेशन है, डी इसका पार्ट है ही नहीं, तो हमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है. अब ए इज एबल टू डिटरमाइन बी, तो ये हमारा और रिड्यूस हो जाएगा और हमारा अब बचेंगे एफ. तीन एट्रीब्यूट्स बचे. अब उसके बाद कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी अप्लाई करेंगे, वो सारे एलिमेंट्स है ही नहीं इसके अंदर. न जी है, न ई है, न डी है, न बी है. तो जो बचे हुए एट्रीब्यूट्स हैं, दिस विल बी योर कैंडिडेट की. दिस विल बी योर कैंडिडेट की. ऑलराइट, so I am going to show you one more example of solving this particular problem of finding out super key or candidate key. If we have not been provided the relation and we have only been provided the set of functional dependencies. Okay, so this is our set of functional dependencies, and based on this we are going to find out what is going to be my super key and what is going to be my candidate key. Okay, so we have not been provided any relation, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे एलिमेंट्स को कंबाइन करेंगे और हमारा एक सुपर की हम बनाने की ट्राई करेंगे. ठीक है, तो सबसे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में व्हाट विल बी द एट्रीब्यूट? A, B, then we have F and D. So these four attributes when combined together
will be called our super key. ठीक है, अब हमारे पास जो टास्क है वो है हमें फाइंड करना है कि भाई हमारी कैंडिडेट की कौन सी बनेगी। तो कैंडिडेट की मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मल्टीपल और कंबाइंड वाले जो कॉम्बिनेशन वाली वो हम रिमूव करेंगे। तो यहाँ पे मेरा जैसे ए बी है, ए बी मेरा किसको डिफाइन कर रहा है, सी को, सी इसका पार्ट है नहीं है, तो मैं इसके ये मेरी सेटिस्फाई हो रही है, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है। ठीक है, फिर हम सिंगल सिंगल वाले पे आएंगे, लेकिन सिंगल सिंगल में पहले हम इससे देखते हैं, बी इज एबल टू डिटरमाइन आई जे, आई जे इसका पार्ट नहीं है तो ये भी ठीक है। एफ, एफ इज एबल टू डिटरमाइन जी एच, तो जी एच भी इसका पार्ट नहीं है, ये भी ठीक है। बी इज एबल टू डिटरमाइन एफ, बी इज एबल टू डिटरमाइन एफ, तो यहाँ पे मैं एफ रिमूव करने की ट्राई करूंगा। एफ कहीं और पे यूज हो रहा है, नहीं हो रहा, तो ये एफ को मैं रिमूव कर दूंगा और मेरे पास जो बचेंगे एट्रीब्यूट वो ये रहेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे कह रहा है ए इज एबल टू डिटरमाइन डी एंड ई, ए इज एबल टू डिटरमाइन डी एंड ई कॉम्बिनेशन में, लेकिन हमारे पास यहाँ पे जो डी एट्रीब्यूट है उसके साथ ई का भी कॉम्बिनेशन है, लेकिन ई यहाँ पे पार्ट नहीं है, तो हम डी को फिलहाल ऐसे ही छोड़ सकते हैं। तो ये बन जाएगा हमारा कैंडिडेट। ओके, तो इसके आगे ये रिड्यूस नहीं हो सकता क्योंकि ए बी इज एबल टू डिटरमाइन सी एंड ए सिंगल हैंडेडली इज एबल टू डिटरमाइन डी ई। अब बी तो यहाँ पे मेंशन है, ई हमारा मेंशन नहीं है, तो हमें इसको सिंगल में रिमूव नहीं करना। अगर ये ऐसे रहता, ए इज एबल टू डिटरमाइन डी ई की जगह पे ऐसा रहता, ए इज एबल टू डिटरमाइन डी और ए इज एबल टू डिफाइन ई, ऐसे दो डिफरेंट फंक्शनल डिपेंडेंसी होती, तो हम यहाँ पे डी को रिमूव कर देते और सिर्फ ए बी को ही रखते। ठीक है, लेकिन ऐसा है नहीं, तो हम लोग इसे रिमूव नहीं कर रहे। आप रिमूव कर दोगे देन ऑल्सो इट विल बी फाइन, ओके, बिकॉज यू कैन, जैसे हमने प्रीवियसली पढ़े थे जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, तो हम जो हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसी होती है उन्हें डिकम्पोज कर सकते हैं। तो आपने अगर ए डिटरमाइंस डी ई को डिकम्पोज किया ए डिटरमाइंस डी और ए डिटरमाइंस सी में, तो ऑब्वियसली ये क्या करेगा, आप इसको आराम से रिमूव कर सकते हैं। तो आपके पास फाइनल जो फंक्शन कैंडिडेट की बचेगी वो कौन सी बचेगी, ए बी, ये आपकी कैंडिडेट की बचेगी। ऑलराइट, so this explains our problem statement that how to identify or how to find out candidate keys and super keys from a given set of functional dependencies as well as from a given set of relations. Okay, so we will stop over here for today, and I hope you practice the problems that I provide you through online classes, and whatever problems that comes across me, I will be providing you those questions. So please practice those questions, and for sure, whenever you have a problem, you can always reach me. In our next lecture, we are going to take the second topic of test one, that is canonical cover. All right. So thank you very much.